بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ہے آپ کا داستان سرفراز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہم شروع کر رہے ہیں ایک بہت ہی خاص سلسلہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں پر مبنی لیکچرز کی سیریز۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کا موضوع ہے ذو الحجہ کی فضیلت اور اہمیت۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال کے سب سے افضل اور بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفجر میں ارشاد فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے مفسرین اور علماء دین نے ان 10 راتوں سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن مراد لیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دن کتنی مقدس اور بابرکت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کی فضیلت کو واضح فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے ہر نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے انتہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت قرآن ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ و خیرات ہو یا کوئی اور نیکی۔ ہر عمل کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان دنوں کو سال کے سب سے افضل دن کیوں کہا گیا ہے؟ ان دنوں کو افضل کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی، عبادتوں کا مجموعہ۔ ان دنوں میں اسلام کے 5 ارکان میں سے کئی ارکان جمع ہو جاتے ہیں۔ حج، جو اسلام کا 5واں رکن ہے، اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ روزہ، نماز، صدقہ اور ذکر و اذکار بھی ان دنوں میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری، یوم عرفہ۔ ان 10 دنوں میں 9 ذو الحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو حج پر نہیں ہے۔ تیسری، عید الاضحیٰ۔ 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، جس میں قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ حج اور قربانی سے تعلق۔ ذو الحجہ کا مہینہ حج اور قربانی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کے فرض کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے، ان کے لیے ان دنوں میں نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ وہ بھی اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قربانی کا عمل بھی اسی مہینے کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو کیا جاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ان مبارک دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم سب کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کو بہتر طریقے سے گزاریں گے، اپنے وقت کو عبادت اور نیک اعمال میں صرف کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور اہمیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا۔ یاد رکھیے، یہ دن اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہیں جنہیں ہمیں غفلت میں نہیں گنوانا چاہیے۔ کل کے لیکچر میں ہم تکبیرات اور ذکر کی فضیلت پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ فار نیکسٹ سیریز۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر۔ ذو الحجہ کے مبارک دنوں کی اس سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔
कल हमने जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की फजीलत और अहमियत पर बात की थी। आज हम एक और बहुत ही अहमियत वाले अमल पर रोशनी डालेंगे, जो है तकबीरात और जिक्र की फजीलत। जुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों में अल्लाह ताला का जिक्र और उसकी बढ़ाई बयान करना बहुत पसंदीदा अमल है। तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर कहना और दीगर अज़कार इस महीने की खास इबादतों में से हैं। ये अमल ना सिर्फ हमारे दिल को रोशन करता है, बल्कि अल्लाह से हमारे ताल्लुक को भी मजबूत बनाता है। तकबीरात की फजीलत और उसके मुख्तलिफ अल्फाज। तकबीरात यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कहना अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई का इकरार है। इन दिनों में इसकी खास फजीलत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह का जिक्र करो मुकर्ररा दिनों में, और अल्लाह का जिक्र करो चंद गिनती के दिनों में। बहुत सी उलमा ने इन गिनती के दिनों से जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन मुराद लिए हैं। इससे पता चलता है कि इन दिनों में अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुल्हिज्जा के 10 दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला को इन दिनों के नेक अमल से ज्यादा महबूब हो। बस इन दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर यानी अल्लाहु अकबर और तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। तकबीरात के मुख्तलिफ अल्फाज हैं, जिनमें से सबसे मशहूर और आम इस्तेमाल होने वाले ये हैं: अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। सुबह शाम और हर नमाज के बाद तकबीरात कहने की तरगीब। इन मुबारक दिनों में खासकर 9 दुल्हिज्जा की फजर से लेकर 13 दुल्हिज्जा की असर तक तकबीरात तशरीक कहना वाजिब है। हर फर्ज नमाज के बाद मर्द बुलंद आवाज से और औरतें आहिस्ता आवाज से ये तकबीरात कहें। इसके अलावा आम दिनों में भी सुबह शाम और जब भी मौका मिले तकबीरात और जिक्र अज़कार करते रहना चाहिए। तस्बीह, तहलील और तहमीद की अहमियत। तकबीरात के साथ साथ तस्बीह सुभान अल्लाह, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह भी कसरत से पढ़ना चाहिए। ये कलिमात अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं और इनके पढ़ने से गुनाह माफ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना। ये अज़कार हमारे दिल को अल्लाह की याद से रोशन करते हैं और हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं। जिक्र से दिल को जिंदा करना यानी अपने दिल को गफलत से निकालकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह करना इन दिनों का खास मकसद है। मेरे प्यारे नाजरीन, इन मुबारक दिनों में अपनी जबान को अल्लाह की जिक्र से तर रखिए। ज्यादा से ज्यादा तकबीरात, तस्बीह, तहलील और तहमीद पढ़िए। अपनी रोजमर्रा की मामूलात के साथ साथ इन अज़कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। चलते फिरते, उठते बैठते हर हाल में अल्लाह को याद कीजिए। खासकर तकबीराती तशरीक का एहतमाम कीजिए। आज हमने जुल्हिज्जा के दूसरे दिन तकबीरात और जिक्र की फजीलत और अहमियत को समझा। याद रखिए, अल्लाह का जिक्र हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। इन दिनों में किए गए जिक्र का सवाब बेइंतहा है। कल के लेक्चर में हम रोजे की फजीलत, खासकर अरफा के दिन का रोजा पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जज़ाकल्लाहु खैरन। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तकबाल है हमारे चैनल पर। दुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले 2 दिनों में हमने दुल्हिज्जा की फजीलत, अहमियत और तकबीरातो जिक्र पर बात की। आज हम एक ऐसे अमल पर रोशनी डालेंगे जो इन दिनों में बहुत अहमियत रखता है, और वो है रोजे की फजीलत, खासकर अरफा के दिन का रोजा। रोजा इस्लाम के अरकान में से एक है और अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा अमल है। दुल्हिज्जा के पहले 9 दिनों में रोजा रखने की खास फजीलत बयान की गई है, और इन सब में सबसे अफजल रोजा 9 दुल्हिज्जा यानी यौम अरफा का रोजा है। पहले 9 दिनों में रोजे रखने की फजीलत।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में नेक अमाल की तरगीब दी है और रोजा भी उन नेक अमाल में शामिल है। कुछ रिवायतों में आता है कि नबी दुल हिज्जा के पहले 9 दिनों में रोजा रखते थे। ये रोजे अल्लाह ताला की रजा हासिल करने और उसकी कुर्बत पाने का बेहतरीन जरिया है। यौम अरफा के रोजे की अहमियत। 9 दुल हिज्जा का दिन यौम अरफा कहलाता है। ये दिन हज का सबसे बड़ा रुकन है, जब हज्जाज किराम मैदान अरफात में जमा होकर अल्लाह से दुआएं करते हैं। जो लोग हज पर नहीं हैं, उनके लिए इस दिन रोजा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे के बारे में फरमाया, मुझे अल्लाह ताला पर गुमान है कि अरफा के दिन का रोजा पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। सुभान अल्लाह, एक दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा बन जाए, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। इस रोजे की अहमियत इस बात से भी जाहिर होती है कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नम की आग से आजादी अता फरमाते हैं। जो लोग हज पर नहीं हैं, उनके लिए इस रोजे की तरगीब। ये रोजा खास तौर पर उन मुसलमानों के लिए है जो हज पर नहीं है। हज्जाज किराम के लिए अरफा के दिन रोजा रखना मुस्तहब नहीं है, क्योंकि उन्हें हज के अरकान अदा करने में ताकत की जरूरत होती है। लेकिन हम सब जो हज पर नहीं हैं, उन्हें इस सुन्नत पर अमल करके इस अजीम सवाब को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे नाजरीन, इन मुबारक दिनों में खासकर 9 दिल हिज्जा यानी यौमी अरफा का रोजा रखने का एहतिमाम कीजिए। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो पहले के दिनों में भी रोजे रखिए। रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपनी आंखों, जबान, कानों और तमाम आज़ा को गुनाहों से बचाने का नाम है। रोजे की हालत में कसरत से जिक्र अस्कार और दुआएं कीजिए, क्योंकि इस दिन दुआएं कबूल होती हैं। आज हमने दुल हिज्जा के तीसरे दिन रोजे की फजीलत, खासकर यौम अरफा के रोजे की अहमियत को समझा। ये एक ऐसा अमल है जो हमारे गुनाहों को मिटाकर हमारे दर्जात को बुलंद कर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम सवाब को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कल के लेक्चर में हम तिलावत कुरान और दुआ की अहमियत पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है हमारे चैनल पर। जुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा चौथा लेक्चर है। पिछले 3 दिनों में हमने जुल्हिज्जा की फजीलत, तकबीरात और रोज़े की अहमियत पर बात की। आज हम 2 ऐसे अजीम इबादतों पर रोशनी डालेंगे जो इन दिनों में खास अहमियत रखती हैं, और वो हैं तिलावत कुरान और दुआ की अहमियत। कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है और इसकी तिलावत करना सबसे अफजल इबादतों में से एक है। इसी तरह दुआ इबादत का मग़ज़ है और अल्लाह से अपनी हाजत तलब करने का बेहतरीन जरिया है। जुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों में इन दोनों अमलों की अहमियत और भी बढ़ जाती है। कुरान से ताल्लुक मजबूत करना। कुरान करीम हमारी जिंदगी के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसकी तिलावत करना, इसके मानी और मफाहीम को समझना और इस पर अमल करना हर मुसलमान पर लाजिम है। जुल्हिज्जा के इन दिनों में अपने आप को कुरान से जोड़ने का बेहतरीन मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इन दिनों में तिलावत, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें, चाहे थोड़ा ही सही लेकिन मुसलसल करें। तफसीर, कुरान की मानी और तफसीर को समझने की कोशिश करें। इससे आपका ईमान मजबूत होगा और आपको अल्लाह के कलाम की गहराई समझ आएगी। हिफ्ज, अगर मुमकिन हो तो कुरान के कुछ हिस्से हिफ्ज करने की नियत करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ अल्लाह ताला से बात करने का जरिया है। ये इबादत का मग़ज़ है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। जुल्हिज्जा के इन दिनों में दुआएं खास तौर पर कबूल होती हैं। खासकर यौम अरफा यानी 9 जुल्हिज्जा के दिन की दुआ की बहुत बड़ी फजीलत है। नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ
अरफा के दिन की दुआ है। और सबसे बेहतर बात जो मैंने और मुझसे पहले के नबियों ने कही वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। कबूलियत दुआ के औकात। इन दिनों में कुछ खास औकात हैं जब दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। रात के आखिरी हिस्से में, आजान और इकामत के दरमियान, फर्ज नमाजों के बाद, जुमा के दिन की खास घड़ी में, रोजे की हालत में, खासकर इफ्तार के वक्त, और सबसे खास यौम अरफा के दिन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी दुआएं सिखाई हैं जो कुरान और हदीस में मौजूद हैं। इन दुआओं को याद करें और कसरत से पढ़ें। अपनी ज़रूरियात के लिए भी अल्लाह से मांगें और दूसरों के लिए भी दुआ करें। अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों और तमाम उम्मती मुस्लिमा के लिए दुआ करें। मेरे प्यारे नाजरीन, इन मुबारक दिनों में अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत और दुआ को खास जगह दें। रोजाना कुरान का कुछ हिस्सा तिलावत करें और उसके मानी पर गौर करें। हर नमाज के बाद और दिन भर में जब भी मौका मिले अल्लाह से दुआएं करें। अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखें और उसकी रहमत पर भरोसा रखें। आज हमने जुल्हिज्जा के चौथे दिन तिलावत कुरान और दुआ की अहमियत को समझा। ये दोनों इबादतें हमारे ईमान को ताज़ा करती हैं और अल्लाह से हमारे ताल्लुक को मजबूत बनाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इन अमलों को कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कल के लेक्चर में हम सदका व खैरात और गरीबों की मदद पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों से रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है हमारे चैनल पर। जुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा 5वां लेक्चर है। पिछले दिनों में हमने जुल्हिज्जा की फजीलत, तकबीरात, रोजे और कुरान और दुआ की अहमियत पर बात की। आज हम एक ऐसे अमल पर रोशनी डालेंगे जो इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, और वो है सदका व खैरात और गरीबों की मदद। इस्लाम में सदका व खैरात और गरीबों की मदद को बहुत अहमियत दी गई है। जुल्हिज्जा के इन अफजल दिनों में इस अमल का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। ये सिर्फ माल खर्च करना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के बंदों पर रहम करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है। माल खर्च करने की फजीलत। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह अपने बंदों को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी है। अल्लाह की राह में खर्च करना यानी सदका व खैरात करना एक ऐसी तिजारत है जिसमें कभी घाटा नहीं होता, बल्कि सवाब में इजाफा ही होता है। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाते हैं, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिसने 7 बालियां उगाई हों और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहता है उसके लिए और बढ़ा देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, सब कुछ जानने वाला है। इस आयत से सदका की फजीलत वाज़ेह होती है कि अल्लाह ताला किस तरह एक छोटे से अमल को कई गुना बढ़ाकर उसका अजर अता फरमाते हैं। गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल रखना। जुल्हिज्जा के इन दिनों में गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंद लोगों का खास ख्याल रखना चाहिए। उनकी मदद करना, उन्हें खाना खिलाना, उनके कपड़े का इंतज़ाम करना या उनकी दीगर ज़रूरतों को पूरा करना बहुत बड़ी सवाब का काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह ताला उसकी आखिरत की तकलीफों में से कोई तकलीफ दूर करेगा। सदका बलाओं को टाल देता है। सदका व खैरात सिर्फ आखिरत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हमारे लिए बेहतरीन जरिया निजात है। सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को दूर करता है और हमारी उम्र में बरकत लाता है। जब हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत अता फरमाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया। सदका व खैरात अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का एक अजीम जरिया है। जब हम अपने माल से अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे राजी होते हैं। ये अमल हमारे दिल में नरमी पैदा करता है और हमें तकब्बुर और माल की मोहब्बत से बचाता है। मेरी प्यारी नाजरीन, इन मुबारक दिनों में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका व खैरात का एहतिमाम कीजिए। किसी गरीब को खाना खिलाइए,
किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए या किसी खैराती इदारे को अपना सदका दीजिए। याद रखिए, छोटा से छोटा सदका भी अल्लाह के नजदीक बहुत अहमियत रखता है अगर वो इखलास के साथ किया जाए। अपनी माल में से अल्लाह का हक निकालने में देर ना करें। आज हमने दुल्हिज्जा के 5वें दिन सदका और खैरात और गरीबों की मदद की फजीलत और अहमियत को समझा। ये अमल हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमें अल्लाह ताला के करीब करता है। अल्लाह ताला हम सबको इस अजीम अमल को कसरत से करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कल के लेक्चर में हम तौबा और इस्तिग़फ़ार पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है हमारे चैनल पर। जुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा छठा लेक्चर है। पिछले दिनों में हमने जुल्हिज्जा की फजीलत, तकबीरात, रोजे, कुरान और दुआ और सदका और खैरात की अहमियत पर बात की। आज हम एक ऐसे अमल पर रोशनी डालेंगे जो हमारी गुनाहों को धोता है और हमें अल्लाह के करीब करता है, और वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। हर इंसान खता का पुतला है। हमसे जानी अनजानी में गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और माफ करने वाला है। उसने अपनी बंदों को तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाजा हमेशा खुला रखा है। जुल्हिज्जा के इन अफजल दिनों में तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत और भी बढ़ जाती है। गुनाहों से माफी मांगना। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला निहायत मेहरबान है। गुनाहों से माफी मांगना यानी तौबा करना सिर्फ जबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल से अपनी गुनाहों पर शर्मिंदा होना, उन्हें दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा करना और अल्लाह से माफी तलब करना है। ये अमल हमारी दिल को पाक करता है और हमें रूहानी सुकून अता करता है। अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब बंदा सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, चाहे वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनहगार तौबा करें, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनहगार तौबा करें, यहां तक कि सूरज मगरिब से निकल आए। इस हदीस से अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत की वुसअत का अंदाजा होता है। जुल्हिज्जा के इन दिनों में अल्लाह की रहमत की बारिश ज्यादा होती है, इसलिए ये तौबा और इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन मौका है। दिल की पाकीज़गी और रूहानी सुकून। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याही आ जाती है, लेकिन जब वो तौबा करता है और इस्तिग़फ़ार करता है तो वो स्याही दूर हो जाती है और दिल पाक हो जाता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार से इंसान को रूहानी सुकून मिलता है, उसके दिल से बोझ उतर जाता है और वो अल्लाह के करीब महसूस करता है। तौबा की शराइत। सच्ची तौबा की कुछ शराइत है। गुनाह पर नदामत, अपने किए हुए गुनाह पर दिल से शर्मिंदा होना, गुनाह को छोड़ देना, उस गुनाह को फौरन तर्क कर देना, दोबारा ना करने का अज़्म, मुस्तक़बिल में उस गुनाह को दोबारा ना करने का पुख्ता इरादा करना, हुकूकुल इबाद की अदायगी। अगर किसी बंदे का हक मारा है तो उसको अदा करना या उससे माफी तलब करना। मेरे प्यारे नाज़रीन, इन मुबारक दिनों में कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए। अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी तलब कीजिए। अपने दिल को पाक कीजिए और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए। सुबह शाम नमाजों के बाद और जब भी मौका मिले अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आज हमने दुल्हिज्जा के छठे दिन तौबा और इस्तिग़फ़ार की अहमियत और उसके फ़वाइद को समझा। ये अमल हमारे लिए अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोलता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने और कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। कल के लेक्चर में हम वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। जज़ाकल्लाहु खैरन।
आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है हमारे चैनल पर। दुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा 7वां लेक्चर है। पिछले दिनों में हमने दुल्हिज्जा की फजीलत, तकबीरात, रोजे, कुरान व दुआ, सदका व खैरात और तौबा व इस्तिग़फ़ार की अहमियत पर बात की। आज हम एक ऐसे मौजू पर रोशनी डालेंगे जो हमारे समाज और रिश्तों की बुनियाद है, और वो है वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक। इस्लाम ने वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक को बहुत अहमियत दी है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज्यादा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। दुल्हिज्जा की इन मुबारक दिनों में इन हुकूक को अदा करना और रिश्तों को मजबूत करना बहुत बड़ी सवाब का काम है। वालिदैन की खिदमत और इताअत। वालिदैन का मर्तबा इस्लाम में बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें छिड़को, और उनसे इज्जत के साथ बात करो। इस आयत से वालिदैन की अजमत और उनकी खिदमत की अहमियत वाज़ेह होती है। उनकी इताअत करना, उनकी खिदमत करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना और उनके लिए दुआ करना हमारा फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। सिलाए रहमी, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ना। रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ना, उनसे अच्छा सलूक करना और उनकी मदद करना भी इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है। इसे सिलाए रहमी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ने का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में वसअत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो सिलाए रहमी करे। सिलाए रहमी सिर्फ रिश्तेदारों से मिलना जुलना नहीं, बल्कि उनकी खैर ख्वाही करना, उनकी मदद करना, उनकी खुशियों और गमों में शरीक होना भी है। अगर किसी रिश्तेदार से नाराजगी हो तो उसे दूर करके ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। इसके दीनी और दुनियावी फवाइद। वालिदैन और रिश्तेदारों की हुकूक अदा करने की दीनी और दुनियावी दोनों तरह की फवाइद हैं। दीनी फवाइद, अल्लाह की रजा हासिल होती है, सवाब मिलता है, गुनाह माफ होते हैं और आखिरत में बुलंद दराजात मिलते हैं। दुनियावी फवाइद, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है, समाज में अमन व अमान कायम होता है, रिस्क में बरकत होती है और उम्र में इजाफा होता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, इन मुबारक दिनों में अपने वालिदैन की खिदमत में कोई कसर न छोड़ें। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए कसरत से दुआए मगफिरत करें। अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात को बेहतर बनाइए, उनसे मिलने जाएं, उनकी खैर ख्वाहिशें करें और उनकी मदद करें। अगर किसी से नाराजगी है तो उसे दूर करके सुलह कर लें। याद रखिए, रिश्तों को जोड़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। आज हमने जुल्हिज्जा की 7वीं दिन वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक की अहमियत को समझा। ये अमल हमारे दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतरीन है। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कल के लेक्चर में हम हज और उम्रा की फजीलत, जो लोग हज पर हैं, पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। जज़ाकल्लाहु खैरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है हमारे चैनल पर। दुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा 8वां लेक्चर है। पिछले दिनों में हमने दुल्हिज्जा की फजीलत, तकबीरात, रोजे, कुरान व दुआ
صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار اور والدین و رشتہ داروں کی حقوق کی اہمیت پر بات کی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالیں گے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ کی فضیلت۔ ذو الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ کا طواف کرنے اور حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں ہی بہت عظیم عبادتیں ہیں جن کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن۔ حج اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس حج کرنے کی مالی اور جسمانی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے اس شخص پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج مبرور کی فضیلت۔ حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو اور جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث سے حج کی اہمیت اور اس کے اجر کا اندازہ ہوتا ہے۔ حج کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عمرہ کی فضیلت۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حج کے ارکان کا مختصر ذکر۔ حج کے کچھ بنیادی ارکان ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ 1. احرام، حج یا عمرہ کی نیت سے خاص لباس پہننا اور تلبیہ پڑھنا۔ 2. طواف، بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ 3. سعی، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ 4. وقوف عرفات، 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ 5. مزدلفہ میں قیام، عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا۔ 6. رمی، شیطان کو کنکریاں مارنا، جمارات پر کنکریاں مارنا۔ 7. قربانی، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ 8. حلق یا تقصیر، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ یہ ارکان حج کے دوران مختلف مرحلوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں چاہیے کہ حج کی نیت کریں اور اس کی تیاری کریں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے، اور اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے انہیں چاہیے کہ وہ حج کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے حج کی توفیق مانگیں۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ جب موقع ملے تو عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے ذو الحجہ کے 8ویں دن حج اور عمرہ کی فضیلت اور اس کے ارکان کو مختصر طور پر سمجھا۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کے لیکچر میں ہم یوم عرفہ، خاص دعا اور عبادت پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر۔ ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی سیریز میں آج ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ذو الحجہ کی فضیلت، تکبیرات، روزے، قرآن و دعا، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار
اور والدین اور رشتہ داروں کی حقوق کی اہمیت پر بات کی۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر روشنی ڈالیں گے جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور وہ ہے حج اور عمرہ کی فضیلت۔ ذو الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر سے مسلمان بیت اللہ کا طواف کرنے اور حج کے ارکان ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ دونوں ہی بہت عظیم عبادتیں ہیں جن کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن۔ حج اسلام کی 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس حج کرنے کی مالی اور جسمانی طاقت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے اس شخص پر جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج مبرور کی فضیلت۔ حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو اور جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اس حدیث سے حج کی اہمیت اور اس کے اجر کا اندازہ ہوتا ہے۔ حج کرنے سے انسان کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عمرہ کی فضیلت۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ عمرہ سال کے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حج کے ارکان کا مختصر ذکر۔ حج کے کچھ بنیادی ارکان ہیں جنہیں ادا کرنا ضروری ہے۔ 1. احرام۔ حج یا عمرہ کی نیت سے خاص لباس پہننا اور تلبیہ پڑھنا۔ 2. طواف۔ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ 3. سعی۔ صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانا۔ 4. وقوف عرفات۔ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ 5. مزدلفہ میں قیام۔ عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنا۔ 6. رمی۔ شیطان کو کنکریاں مارنا، جمارات پر کنکریاں مارنا۔ 7. قربانی۔ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا۔ 8. حلق یا تقصیر۔ سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا۔ یہ ارکان حج کے دوران مختلف مرحلوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں چاہیے کہ حج کی نیت کریں اور اس کی تیاری کریں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہوتی ہے اور اس کے فوائد بے انتہا ہیں۔ جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے انہیں چاہیے کہ وہ حج کرنے والوں کے لیے دعائیں کریں اور اللہ سے حج کی توفیق مانگیں۔ عمرہ بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ جب موقع ملے تو عمرہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے ذو الحجہ کے 8ویں دن حج اور عمرہ کی فضیلت اور اس کے ارکان کو مختصر طور پر سمجھا۔ یہ دونوں عبادتیں اللہ کی قربت حاصل کرنے اور گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل کے لیکچر میں ہم یوم عرفہ خاص دعا اور عبادت پر تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پلیز سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے چینل پر۔ ذو الحجہ کے ان مبارک دنوں کی سیریز میں آج ہمارا 9واں لیکچر ہے۔ یہ دن ان 10 دنوں میں سب سے افضل اور اہمیت والا دن ہے، یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ
हज का सबसे बड़ा रुकन है। इस दिन दुनिया भर से हज्जाज किराम मैदान अरफात में जमा होकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़रत तलब करते हैं और दुआएं करते हैं। जो लोग हज पर नहीं हैं, उनके लिए भी इस दिन की बहुत बड़ी फजीलत है और उन्हें भी इस दिन को इबादत और दुआ में गुजारना चाहिए। अरफा के दिन की सबसे अफजल दुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है और सबसे बेहतर बात जो मैंने और मुझसे पहले के नबियों ने कही वो है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इस दुआ का मतलब है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इस दिन इस दुआ को कसरत से पढ़ना चाहिए। ये दुआ तौहीद का इकरार है और अल्लाह की अजमत का बयान है। अल्लाह की तरफ से आग, अल्लाह की तरफ से आग से आजादी का दिन। यौम अरफा एक ऐसा दिन है जिस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नम की आग से आजाद अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन से ज्यादा कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह ताला बंदों को जहन्नम की आग से आजाद करता हो। ये अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमत और मग़फ़िरत का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने अराफात में ठहरे हुए लोगों पर फख्र करते हैं। कसरत से दुआ, जिक्र और इस्तिग़फ़ार। यौम अरफा को सिर्फ रोजा रखना ही नहीं, बल्कि कसरत से दुआ, जिक्र और इस्तिग़फ़ार करना भी बहुत अहमियत रखता है। इस दिन की हर घड़ी कीमती है। खासकर असर की नमाज के बाद से मगरिब तक का वक्त दुआओं की कबूलियत का खास वक्त है। इस वक्त में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनते हैं और उनकी हाजत पूरी करते हैं। इस दिन दुआ अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं करें। दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे। जिक्र, कसरत से तकबीरात, तहलील, तहमीद और तस्बीह पढ़ें। इस्तिग़फ़ार, अपने गुनाहों पर नदामत करते हुए अल्लाह से माफी तलब करें। मेरे प्यारे नाजरीन, यौम अरफा को गफलत में ना गुजारें। इस दिन का रोजा रखें। अगर हज पर नहीं है, दिन भर कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ें। असर के बाद से मगरिब तक का वक्त खास तौर पर दुआओं में गुजारें। अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रखें और उसकी रहमत पर भरोसा रखें। आज हमने दुल्हिज्जा के 9वें दिन यौम अरफा की खास फजीलत, दुआएं और इबादत को समझा। ये दिन अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। कल के लेक्चर में हम ईद उल अधा और कुर्बानी पर तफसीली बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हम सबको इन मुबारक दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। जज़ाकल्लाहु खैरन। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है हमारे चैनल पर। जुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों की सीरीज में आज हमारा 10वां और आखिरी लेक्चर है। आज हम उस दिन पर बात करेंगे जिसका हम सबको इंतजार होता है, और वो है ईद उल अधा और कुर्बानी। 10 जुल्हिज्जा को ईद उल अधा मनाई जाती है, जिसे ईद कुर्बान भी कहते हैं। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए खुशी और शुक्र का दिन है। इस दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताजा की जाती है और अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कुर्बानी का अमल किया जाता है। ईद की नमाज और उसके मसाइल। ईद उल अधा की सुबह मुसलमान ईदगाह या मस्जिद में जमा होकर 2 रकात ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद की नमाज में
عام نمازوں سے زیادہ تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں جس میں عید کی اہمیت اور قربانی کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہیں: غسل کرنا، صاف ستھری اور بہترین کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ کی طرف پیدل جانا اور واپسی میں راستہ بدلنا، راستے میں تکبیرات کہنا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ پر نماز سے پہلے کچھ کھانا نہیں چاہیے، بلکہ قربانی کے گوشت سے افطار کرنا مستحب ہے۔ قربانی کی سنت اور اس کی اہمیت۔ قربانی یعنی اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بے جھجک اس حکم کی تعمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ قربانی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کو کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: اللہ کو ان قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور تقویٰ حاصل کرنا ہے، نہ کہ صرف گوشت حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا طریقہ۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، ایک حصہ اپنی گھر والوں کے لیے۔ اس سے سماج میں محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اور غریبوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جاتا ہے۔ تکبیرات تشریق۔ عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیرات اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اقرار ہے اور ان دنوں کی خاص عبادت ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، عید الاضحیٰ کے دن خوشی منائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اور قربانی کا اہتمام کیجیے۔ عید کی نماز ادا کریں اور تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں۔ قربانی کے گوشت کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں اور غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے ملیں اور عید کی خوشیاں بانٹیں۔ آج ہم نے ذوالحجہ کے 10ویں اور آخری دن عید الاضحیٰ کی اہمیت، قربانی کی فضیلت اور اس کے مسائل کو سمجھا۔ یہ دن اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جسے ہمیں شکر اور عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں پر مبنی ہماری لیکچر سیریز علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کا دن 9 ذوالحجہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں اللہ بندوں کو جہنم کی آگ سے زیادہ آزاد کرتا ہو۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو وہ 7 فضائل بتاؤں گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ پورا ویڈیو دیکھنا، کچھ نیا ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ یوم عرفہ کیا ہے؟ دوستوں، پہلے سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ آتا کب ہے اور ہے کیا۔ 9 ذوالحجہ کو حج کے بیچ میں لاکھوں حاجی میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج عرفہ، حج کا مطلب ہی عرفہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سنو، یہ دن صرف حاجیوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ جو گھر بیٹھے ہیں، جو مکہ نہیں گئے، ان کے لیے بھی اس دن کی فضیلت بے حد عظیم ہے۔ اور یہی 7 فضائل ہیں جو آج ہم جانیں گے۔ 1، گناہوں کی مکمل معافی، پچھلی 2 سال کی۔ دوستوں، پہلی فضیلت سنو اور دھیان سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیام یوم عرفہ
अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु। यौम अरफा का रोजा मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि पिछले साल और अगले साल की गुनाह माफ कर देगा। जरा सोचिए, सिर्फ एक रोजा और 2 साल की गुनाह माफ। सुभान अल्लाह, कोई बैंक आपको इतना रिटर्न देता है क्या? तो दोस्तों, 9 जुल्हिज्जा का रोजा जरूर रखना। दूसरा, जहन्नुम से आजादी का दिन। हमने शुरू में जो हदीस सुनी उसमें था कि इस दिन अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन अक्सरा मिन अन युअतिकल्लाहु फीही अब्दम मिनन नारी मिन यौमि अरफा। कोई दिन नहीं जिसमें अल्लाह इतने बंदों को जहन्नुम से आजाद करता हो जितने अरफा के दिन। इस दिन अल्लाह अपने मलाइका के सामने फख्र होता है और फरमाता है, देखो मेरे बंदों को, वो मेरे पास आए हैं, क्या चाहते हैं। ये अल्लाह की शान की बात है दोस्तों। तीसरा, सबसे अफजल दुआ का दिन। यौम अरफा सबसे अफजल दुआस का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु दुआई दुआउ यौम अरफा। सबसे बेहतर दुआ अरफा के दिन की दुआ है। तो दोस्तों, जो दिल की तमन्ना है, जो सालों से मांगना चाहते हो, जो तकलीफ उठा रहे हो, आज के दिन मांगो, रोने के साथ मांगो। अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह कबूल करता है। चौथा, दीन की मुकम्मल नियामत का ऐलान। इस दिन अल्लाह पाक ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो तमाम मुस्लिम्स के लिए नियामत की खुशखबरी थी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत पूरी कर दी। सूरह अल माइदा 5:3। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर यहूद के पास ये आयत होती तो वो उस दिन ईद मनाती। तो दोस्तों, ये हमारी ईद है, ईदी दीन का मुकम्मल होना। 5, शैतान की जिल्लत का दिन। शैतान इस दिन जलील होता है। 9 जुल्हिज्जा को शैतान की आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है, शैतान इस दिन से ज्यादा कभी जलील नहीं होता, क्योंकि वो देखता है कि अल्लाह अपने बंदों की माफी कर रहा है, अजाब माफ कर रहा है। तो दोस्तों, जिस दिन शैतान रोता है उस दिन हम खुशी मनाते हैं, और शैतान को रुलाना और खुद अल्लाह की रहमत में दाखिल होना, यही तो जिंदगी का मकसद है। 6, अल्लाह का अपने बंदों पर फख्र, मुबाहात इलाही। ये फजीलत शायद सबसे ज्यादा इमोशनल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा के दिन अल्लाह पाक अपने मलाइका के सामने अपने बंदों पर फख्र करते हैं और फरमाते हैं, देखो मेरे बंदों को, दूर दूर से आए हैं, बाल बिखरे हैं, कपड़े धूल में हैं, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आपके घर में बैठे हुए रोना, दुआ करना, अल्लाह को याद करना, ये भी उसी महफिल में गिना जाता है। अल्लाह आपका जिक्र अपने मलाइका के सामने करता है। 7, क़यामत की तकरीर, हज्जतुल विदा की याद। इस दिन का एक और खास मर्तबा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी हज में 9 जुल्हिज्जा को मैदान अरफा में खड़ा होकर इंसानियत को वो खास खुतबा दिया जो क़यामत तक के लिए रहनुमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्ना दिमाकुम व अम्वालकुम व आरादकुम हरामुन अलैकुम। लोगों, तुम्हारे खून, माल और इज्जतें एक दूसरे पर हराम है। इस दिन को इसलिए याद करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो उन्होंने दुनिया को आखिरी बार दी, वो इस दिन दी थी। इस दिन की अजमत समझो। आज के दिन क्या करें? 5 जरूरी अमाल। दोस्तों, फजाइल तो सुन ली, अब अमल भी बताता हूं। यौम अरफा को जाया मत करो। 1, रोजा। 9 दुल्हिज्जा का रोजा जरूर रखें, 2 साल के गुनाह माफ। 2, इस्तिगफार, सुबह से शाम तक अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। 3, तकबीर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 4, दरूद, कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 5, दुआ, असर से पहले और बाद दिल खोल के मांगो, रो के मांगो। अरफा की सबसे अफजल दुआ। दोस्तों,
अब मैं वो दुआ पढ़ता हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन सबसे ज्यादा पढ़ी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की, तारीफ उसी की, और वो हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, ये दुआ बार बार पढ़ो, असर के बाद से ताकि इफ्तार तक ये दुआ ना छोड़नी। तस्बीह ले लो, फोन रख दो, बस यही पढ़ो। दोस्तों, आज हमने सुना रोजा 2 साल के गुनाह माफ, जहन्नम से आजादी का दिन, सबसे अफजल दुआ का वक्त, दीन के मुकम्मल होने का दिन, शैतान की जिल्लत का दिन, अल्लाह का अपने बंदों पर फर्क करना, हज्जतुल विदा का मुकद्दस दिन। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड करो, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। अगर ये लेक्चर पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि अगली साल भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरन।